Welcome to the online classes of Shri Ram Public School. I am your English teacher and today we are going to continue with our chapter A Triumph of Surgery. In the last video we saw about the author and I asked you to write about the same. Then we saw the theme. What is the theme of the story? That when the kids are over demanding and if the parents are rich, the parents should not fulfill all the demands of the kids. Otherwise, the kids might become lethargic. After that, we were going to see the chapter, but it was a bit delayed. Today, we will see the text. Let us read the text. Before starting, there's this Triumph of Surgery written by Dr. James Herriot. So shows how a dog named Tricky was roaming around with its mistress, and the dog was overshot, his eyes was rheumy, he was too much fed, and that is why he got very fat. Now let us see the chapter. I was really worried about Tricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. This paragraph we have already seen, but still let's start from starting, that would be better. So I was really worried, means he was very much tensionized regarding what? Regarding this pet Tricky. Why? When Dr. James Herriot saw this dog Tricky, he took back his car, he pulled back his car on the street, and he was shocked to see the appearance. वो जो Tricky दिख रहा था उस टाइम, उसको देखकर ये shocked हो गए थे, बहुत over surprised हो गए थे. जो Tricky है वो usually fat हो गया था, बहुत ज़्यादा मोटा, और इसको एक्सप्लेन किया गया है that he was like a blotted sausage with a leg at each corner. Sausage with एक leg के पास corners में ample amount of muscles थे. I also told you to write the meaning. See, blotted means swollen and sausage means the cooked meat. तो ये कह रहा है कि आपको जो डॉग था उसके मसल्स इकट्ठा हो गए थे कई सारे जगह पर. ठीक है, इट्स बेटर दैट यू राइट द मीनिंग्स, दैट विल बी गुड फॉर यू. ठीक, फिर बताते हैं कि उसका जो आईज था दैट वाज ब्लड शॉट एंड र्यूमी. ब्लड शॉट मतलब पूरी आंखों में जैसे लाल लाल नसें दौड़ रही हैं. इट वाज रेड एंड इट वाज वाटरी एज इफ ही वाज सो लेजी एंड ही स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. और वो जो है स्ट्रेट बहुत लेजी उन आंखों से सामने की तरफ देख रहा था, और जो उसकी टंग है लॉल्ड मीन्स इट रोल्ड. वो जो टंग अगर आप डॉग की देखेंगे तो यूजुअली वो गिरी रहती है, और इस डॉग की भी जो टंग थी इट वाज लॉलिंग फ्रॉम द जॉज, सो द टंग इवन वाज सो लेजी. तो जो पहला आपका पैराग्राफ है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन व्हाट वाज ट्रिकीज अपीयरेंस एट द फर्स्ट इंस्टेंट, जब पहली बार डॉक्टर जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को देखा था तो उसका अपीयरेंस क्या था? तो ऐसा था उसका अपीयरेंस. ही वाज यूजुअली फ्लैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कि कुक्ड मीट ढेर सारा उसके हर कॉर्नर पे, लेग्स पे, हर जगह पर रख दिया गया हो, ऐसा था, अलग से मांस रखा हुआ हो. उसकी आईज कैसी थी? इट वाज ब्लड शॉट एंड र्यूमी एंड ही वाज स्टेयरिंग वेरी लेजीली स्ट्रेट एंड आल्सो इट्स टोल्ड दैट हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज. सो दिस इज द अपीयरेंस ऑफ ट्रिकी. Let's move further. Mrs. Pumphrey hastened to explain, and she was very worried, tensionized. She wanted to explain. What she wanted to explain? He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. कहते हैं कि कितना वो listless हो गया था, ऐसा लगता था जैसे उसके पास बिल्कुल energy ही नहीं है. ठीक है, I am telling you regularly. See, the meanings are written over here. Listless means lifeless. जैसे लग रहा था कि उसके पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है. ऐसा किसको लग रहा था? मिसेस पंफ्रे को, उनकी मिस्ट्रेस को लग रहा था. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, और इनको लगा कि दिस डॉग मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, को पोषण का शिकार हो सकता है. सो इन्होंने क्या किया? कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा दिया इनके मील्स में, तो इसलिए खाना क्या हो गया और थोड़ा सा बढ़ गया इस डॉग के लिए. अब इसको क्या क्या देती हैं? आई हैव बीन गिविंग हिम एक्स्ट्रास बिटवीन द मील्स टू बिल्ड हिम अप. सम माल्ट बेस्ड फूड, cod liver oil. What else? A bowl of Horlicks at night, okay, to make him sleep well.
आई हैव नथिंग मच रियली, शी सेज, इससे ज्यादा और इतना ज्यादा नहीं कुछ, बस ये सब मैंने एक्स्ट्राज में ऐड किया है. एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट्स, आई टोल्ड यू. तो हेरियट पूछते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि मीठा कम कर दीजिएगा, क्या आपने वो किया? ओ आई डिड फॉर अ बिट. तो मिसेस पंफ्रे कहती, हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो कम किया था, बट आई कुडंट, ही सीम टू बी सो वीक, सो आई हैड टू रिलेंट. मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि बहुत कमजोर हो जा रहा था. ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज हिम. तो उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है, इसलिए वो रिफ्यूज नहीं की. कौन? मिसेस पंफ्रे. आई लुक डाउन अगेन एंड अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वाज द ट्रबल. और जो इसका ओवर ईटिंग था, एक्चुअली दैट वाज द ट्रबल. ही वाज नोवेयर malnutritious, nowhere listless, he was just too lazy after having this much food. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. तो इसका सिर्फ एक फॉल्ट था कि वो बहुत ग्रीडी था, उसको हमेशा खाना चाहिए होता था, और उसने फूड को रिफ्यूज करना तो सीखा ही नहीं है, कभी फूड को उसने रिफ्यूज नहीं किया. सो ये प्रॉब्लम किसकी थी? ट्रिकी की प्रॉब्लम थी. नाउ मूविंग फर्दर, कहते हैं कि he had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. और उसको खाना आप दे दीजिए, जैसे कुछ लोग होते हैं कभी भी खाना खा सकते हैं, और ये किसी भी टाइम खाना खा सकता था, जस्ट लाइक एनी ग्रीडी पर्सन. और ये अभी भी शक में है डॉक्टर हेरियट की ये तो चीजें जो मिसेस पंफ्रे ने मेंशन की, कितनी ऐसी चीजें होंगी जो अपने डॉग को खिलाती होंगी और इन्होंने मेंशन तक नहीं की. और फिर ये पूछते हैं, डिड यू आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज? तो कहती है, वेल ही हैज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, थोड़ा बहुत चल लेते हैं. बट हॉटगिन एक गार्डनर है इनका, वो लंबागो की वजह से डिजीज हो गया है, तो लंबागो की वजह से वो नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से रिंग थ्रोइंग वाला जो गेम होता है डॉग्स का, वो इनको नहीं खिलाया जा रहा है. These are the meanings. See, lumbago, backache, mention, describe, bear, tolerate, relent, soften. Now, page 2. पेज 2 में आप देख सकते हैं कैसे ये डॉग को लेकर खड़ी हैं, काफी कपड़े वपड़े पहने और खुद भी शी इज वेल ड्रेस्ड. I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right now, give him more exercise. He's really going to be ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. और ये पहले ऐसा नहीं कि वॉर्न नहीं करते, कहते हैं कि आपको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रखनी होगी, अदरवाइज दिस डॉग विल बी वेरी सिवियरली इल. मिसेस पंफ्रे wrung her hands, कहती है, ओह आई विल मिस्टर हेरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट. एंड शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime means rule. तो इस बार वो हाथ से सही, आप सही कह रहे होंगे, आप जरूर सही कह रहे होंगे, और इस बार डेफिनेटली मैं आपकी बात मानूंगी, एज इफ ये जो नया रूल है, नया रिजीम है, वो फॉलो करने वाली थी. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. और वो धीरे धीरे जो है चल रहे थे, और डॉक्टर हेरियट उसको देख रहे थे, कह रहे थे काफी कंसर्न फील हो रहा था मुझे खुद इनके प्रोग्रेस को देख के. आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंफ्रे. तो कह रही है कि देखो ऐसा है कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा को ट्वीड कोट पहना हुआ था, उसके पास एक ओल्ड वार्डरोब था कोट का फॉर कोल्ड वेदर, एक रेन कोट था फॉर रेनी डेज, और वो बेचारा स्ट्रगल करके जो है वो चल रहा था किसी तरह से. तो इनको पता था कि ज्यादा दिन नहीं लगेगा जब एक जल्दी से कॉल आने वाला है मिसेस पंफ्रे के यहाँ से, और एक्सपेक्टेड कॉल आ भी गई. मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and beside he had bouts of vomiting. अब अपने फेवरेट डिशेस फाइनली ये रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है, और उल्टी करने लगा है, बाउट्स तक्के तक्के जो भी खा रहा था, दैट ही वाज वॉमिटिंग. He spent all his time lying on the rug, panting, हाँफता रहता था, didn't want to go for walks, didn't want to do anything, कुछ भी नहीं करना चाहता था. अब इनका प्लान पहले से था, इनको पता था कि भाई अब क्या करना है, had planned in advance. The only way was to get out of the house for a period of time. कुछ दिन के लिए इनको घर से बाहर निकालो, everything will be all right. Okay, I suggested that he had to be hospitalized fortnight to be kept under observation. तो कहते हैं कि मैंने सजेस्ट कर दिया कि अब आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है. पुअर लेडी, उसको तो लग रहा था बेहोशी हो जाएगी. She was sure she would pine and die if she did not see the dog every day. और रोज वो सोचती थी अगर नहीं रोज वो देख ली अपने कुत्ते को तो वो वरी से मर जाएगी.
But this man, he took a firm decision. Tricky was very ill, he said, and this was only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay. और बिना देर किए जो है ये उसको ले गए. ठीक है, ये आपकी मीनिंग्स. नेक्स्ट, ये है आपका चैप्टर पेज नंबर 4 और ये है पेज नंबर 3. पेज नंबर 3 देखते हैं. फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग. अब मिसेस पम्फ्रे पीछे से जो है रो रही हैं और ये कार तक ले गए डॉग को रैप करके ब्लैंकेट में. पूरा जो घर का स्टाफ था वो दौड़ते भागते आया. कोई कुछ लेकर आ रहा है, कोई ब्रेकफास्ट बाउल, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल, कोई कुशन, कोई टॉयज, कोई रबर रिंग्स. तो ये किसी तरह से बस अपनी, जैसे उनकी कार भर गई थी, अब और स्टफ उनकी कार में जा नहीं रहा था और इन्होंने अपनी कार स्टार्ट कर दी. और ये मिरर में देखते हैं कि सारे लोग रो रहे थे. Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. और वो जो एनिमल था, he was panting, हाँफ रहा था, वो सांस नहीं सही से ले पा रहा था. और जाते जाते जब ये लोग आगे तो वो आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स उनके लिए लाकर थ्रो करके गई थी कि ये भी पहना दीजिएगा. तो ये सब चीज से आपको क्या लग रहा है, ओवर केयरिंग थे लोग इस डॉग को लेकर. ठीक है. Poor old lad, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. और तुम्हें अब बिल्कुल से भी एनर्जी नहीं बची है, you are बिल्कुल lazy, and he says, I know how can I cure you. At the surgery, the household dogs surged round me. और जब ये सर्जरी अपने क्लिनिक पे पहुंचे तो इनके जो बाकी डॉग्स थे वो इनके चारों ओर घूमने लगे. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes. और वो सारे बहुत नॉइजी थे, बहुत एक्टिव थे और ट्रिकी जो है उनको भी डल आइज से देख रहा था. He was laying motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him, कुछ देर तक बाकी डॉग भी उसको जाते, स्निफ करते, सूंघते. But then he was uninteresting object for them. ये जो डॉग था ये काफी अनइंटरेस्टिंग था और इसको इग्नोर कर दिए बाकी सब. इन्होंने नॉर्मल सा एक बेड बनाया एक बॉक्स में और उसको एक किनारे सोने दिया. 2 दिन तक सिर्फ पानी पे रखा गया उसको. 2 दिन के बाद धीरे धीरे 3rd डे से उसको कुछ खाने दिया गया और यार्ड में छोड़ा गया बाकी डॉग्स के साथ. जब ये डोर ओपन किए, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड. और जैसे वो बाहर जाता है तो एक डॉग था इनका ग्रे हाउंड जो, ये और पूरे डॉग्स का ग्रुप लेकर इनके चारों ओर आ गया. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो उस सिचुएशन क्या थी, वो डॉग्स उसको थोड़ी देर सूंघे, स्निफ किए और वो सब आगे बढ़ गए. ट्रिकी भी धीरे धीरे उन डॉग्स के पीछे जा रहा था और क्योंकि उसका जो फैट था वो स्लाइटली नहीं बहुत ज्यादा था, सरप्लस फैट था, तो इसलिए वो भी किसी तरह से रोल करते हुए पहुंचा. उस दिन के शाम तक I was present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowl. तो ट्रिस्टन एक आदमी था जो फूड बाउल में डाल रहा था. देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश. तुरंत कुत्ते जो है रश करके आ जाते थे बाउल तक खाना खाने. Followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew if that fell behind the others, he was liable to have some competition for the part of his meal. तो अगर हर कुत्ते को पता था जल्दी जल्दी अपना खाना अपने बाउल का फिनिश कर ले, वरना क्या होगा, दूसरा वाला कुत्ता तुम्हारे बाउल में आ सकता है और उससे कंपटीशन हो जाएगा जिसकी वजह से हो सकता है डॉग को खाना ना मिले. सो दिस आर द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज. हियर्स योर मीनिंग and here's the meaning of another page. So when they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one of them. Next day an extra bowl was put. अब finally Tricky को खाने में इंटरेस्ट आ रहा था तो अगले दिन उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल लगाया गया और जैसे बाकी कुत्ते जॉसल मतलब एनर्जेटिकली दौड़ के वहां पहुंचते हैं वैसे ट्रिकी भी गया और ये देखकर डॉक्टर को काफी खुशी हुई. From then on his progress was rapid. He had no medical treatment. अब देखिए आप इतने दिन में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जरी नहीं हुई है. धीरे धीरे वो फ्रेंड्स के साथ भी दौड़ने लगा था, टॉयज देखता था, उनके साथ खेलता था, बाउल्स के साथ. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग और जो ग्रुप ऑफ डॉग्स थे उन्होंने भी इसको जो है एक्सेप्ट कर लिया था. द सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग हाउस एट नाइट. ही हैड नेवर सच अ टाइम इन हिज लाइफ. इससे पहले इस कुत्ते की लाइफ में ऐसा टाइम नहीं था. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्रे होवर्ड एंग्शियसली इन द बैकग्राउंड. और इस सब में वो बैकग्राउंड में अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो वो काफी एंग्शियस थी. होवरिंग मीन्स मूविंग अराउंड. वो चलती रहती थी. 12 ऑफ टाइम्स उनका कॉल आता था लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, लेटेस्ट बुलेटिन के लिए, लेटेस्ट न्यूज के लिए.
आई डॉज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस को किस तरह से इग्नोर करते थे, और किस तरह के क्वेश्चंस थे कि कुशन चेंज हुआ कि नहीं, उसको करेक्ट कोट करेक्ट टाइम पे पहनाई जा रही है कि नहीं। हाँ, बट ये कहती हैं कि नहीं ठीक है, ये बार बार कहते हैं कि नाउ वो डेंजर से बाहर है और धीरे धीरे ठीक हो रहा है। द वर्ल्ड convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. Convalescing means recovering. She started to bring round fresh. अब कुछ तो हुआ कि अब ठीक हो रहा है तो खाना भेजो। तो अब क्या भेजती थी? एग्स भेजती थी 2 डजन अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन एग्स। ओके, टू बिल्ड अप Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 each for breakfast. और ये और इनके जो पार्टनर्स थे क्लिनिक में आराम से एग खाया करते थे, ठीक है। एंड बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू dawn on the household. अब ये अब वाइन भी आने लगा था डॉग के लिए, ताकि उसका ब्लड जो है एनरिच हो जाए। तो अब जो सिचुएशन थी इनके घर की वो भी बहुत ही अच्छी हो गई थी, सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। जो लंच था वो एक सेरेमनी की तरह मनाया जाता था, 2 ग्लास वाइन रहता था, हर मील के बाद वाइन आता था, ये आपका जो है मीनिंग। और इनको बड़ा ही मजा आ रहा था उस डॉग को रखने में। वी कुड हार्डली बिलीव इट when brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। अब ब्रांडी वगैरह आने लगी थी। कुछ नाइट तक तो इन लोगों को बड़ा अच्छा लगा। उसका जो फाइन स्पिरिट डॉग भी जो था बहुत अच्छा था, वो इनहेल कर रहा था, ये लोग भी आराम से ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ये सब डेज थे ऑफ डीप कंटेंट, सेटिस्फैक्शन के डेज थे, जब दिन शुरुआत होती थी एक्स्ट्रा एग से, फिर उसके बाद मिड डे वाइन, और फिर लग्जूरियसली ब्रांडी पीकर रात को फिनिश होता था डे। तो एक इन लोगों को टेम्पटेशन हुआ, एक अट्रैक्शन हुआ कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रख ले। लेकिन वहीं पर मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत सफर कर रही थी, बार बार फोन करती थी। इनके कॉल को इग्नोर करने के बाद भी उनके कॉल को उठाना पड़ता था, बिकॉज शी वाज कॉलिंग सेवरल टाइम्स। और ये तुरंत कहते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि हाँ अभी ठीक है डॉग, तुरंत कुछ मिनटों में ही 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल आ जाती है कार उनके दरवाजे पे। तो आप ये देख रहे हैं इस चैप्टर से आपको क्या क्या दिख रहा है कि मिसेस पम्फ्रे कैसे एक रिच लेडी थी और कैसे एक्स्ट्रा लग्जरी और कंफर्ट ट्रिकी को प्रोवाइड करती थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप इस तरह के पॉइंट्स जो है मेंशन कर सकते हैं। द शॉफर, द ड्राइवर ओपन द डोर, और ये सिर्फ देखते ही रह गए इंटीरियर्स। Make figure out of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her, और काफी जो उनके लिप्स हैं वो कांप रहे थे। इस समय सिचुएशन बहुत खराब थी। कहती थी, ओ मिस्टर हैरियट, डू यू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? तो ये कहते हैं, yes, he is really fine. There is no need for you to get out of the car. I'll fetch him. I walked through the house into the garden. A mass of dog hurtling round and round the lawn. अब सब खेल रहे थे आराम से, उसकी टेप वेविंग थी। जो छोटा सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी का वो भी इंजॉय कर रहा था। 2 हफ्ते हो चुके थे, अब वो बिल्कुल लीट, एकदम परफेक्ट फिट, हार्ड मसल वाले एनिमल में कन्वर्ट हो चुका था। उसका चेस्ट के जो हेयर्स थे वो ग्राउंड को ब्रश कर रहे थे, बहुत अच्छे से खेल रहा था। आई कैरीड हिम टू द पैसेज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। द शॉफर, अभी भी जो शॉफर था वो डोर ओपन करके खड़ा था, और ट्रिकी जैसे ही देखते अपनी मिस्ट्रेस को, ही टुक ऑफ अ लीप फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रेमेंडस लीप। एक जोर का कूद लगाते हैं ये, और कहाँ जाते हैं? मिसेस पम्फ्रे के लैप में, गोद में सीधे चले जाते हैं। और वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, स्टार्टल हो जाती हैं, कहती ओह माय डॉग, एंड देन ही हैड टू डिफेंड हरसेल्फ। और जैसे वो बार बार उनके ऊपर चढ़ के उनको लिक कर रहा था तो वो खुद को बचाने लगी। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड। और ये लोग एंजॉय कर रहे थे तब तक बेड, टॉय, कुशन जो कभी यूज नहीं हुआ वो वापस लाके कार में रख दिया गया। मिसेस पम्फ्रे विंडो के बाहर झांकती हैं, उनके आंखों में आंसू थे, उनके लिप्स जो है कांप रहे थे, और कहती हैं वो, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कभी थैंक यू कैसे बोल सकती हूँ? यह आपकी सर्जरी की ही विक्ट्री है, जीत है, ट्रायम्फ है। इट इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मीनिंग्स जितनी है यहाँ पर वो सारी अगर आप लिखेंगे तो ही आपको चैप्टर में ईज मिलेगा। ये समरीज, योर होमवर्क, एंड ये कैरेक्टर स्केच मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी का। Thereafter these are the question answers. So those who don't know the homework, आज का होमवर्क है समरी, word meaning, question answer और character sketch. Anyhow maintain in the copy. That's all for today's class. Thank you. Have a good day.